Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the remaining three factors which are affecting the rate of transpiration, as well as we are going to discuss the transpiration as necessary evil. So let's move to the classwork. So dear students, factors affecting the rate of transpiration, and in the previous lecture we have discussed the first three factors which were affecting the rate of transpiration, and these factors were: number one, light, which have been discussed in the previous lecture. Number two, temperature. And number three, carbon dioxide concentration. So these three factors have been discussed. तो उसका एक just quick overview देता चलूँ. So light intensity और light quality ये दोनों ही इफेक्ट कर रही थी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को. लाइट जितनी ज़्यादा इंटेंस होगी रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन उतना ज़्यादा होगा, और ब्लू लाइट वो पोटेशियम आयंस की जो मूवमेंट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उसको फेवर करती है, जिसकी वजह से चाहे वो गार्ड सेल्स इन्फ्लेट होते हैं, स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करता है. Second, temperature. So temperature is also directly proportional to the rate of transpiration. Decrease in temperature decreases rate of transpiration. Increase in temperature increases rate of transpiration, but up to a certain limit. So every 10 degrees Celsius rise in the temperature, it doubles the rate of transpiration. Above 40 to 45 degrees Celsius temperature close the stomata, so decreasing the rate of transpiration. Clear? और इसमें एक हार्मोन का भी हमने रोल पढ़ा था, एब्सिसिक एसिड, दैट इज़ अ प्लांट हार्मोन. और ये हार्मोन क्या करता है कि जो पोटेशियम आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट थी गार्ड सेल्स के अंदर, उसको रोक देता है. तो गार्ड सेल्स दे रिमेन फ्लैसिड एंड द स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड. सो एट हाई टेम्परेचर्स ये हार्मोन रिलीज होगा और उस जो स्टोमेटा उनको क्लोज करवा देगा. सो ओवर राइडिंग द इफेक्ट ऑफ लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन. And the third factor, the carbon dioxide concentration. Low carbon dioxide concentration favors the active transport of potassium ions into the guard cells, while high concentration it halts the transport of potassium ions or influx of potassium ions into the guard cells. So high concentration decreases the rate of transpiration, while a low concentration favors the rate of transpiration. So that was a just quick overview of the previous lecture. Now the fourth factor is humidity and vapor pressure. तो डियर स्टूडेंट्स, ह्यूमिडिटी आमतौर पर हम इसको मॉइस्चर या नमी कहते हैं. तो अगर तो एनवायरनमेंट के अंदर, यानी कि बाहर हवा के अंदर नमी है, तो ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को कम कर देती है. और अगर एनवायरनमेंट के अंदर, जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी कम होगी, तो ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को सपोर्ट करेगी. तो किस तरह से? सो increase in humid air decreases. तो यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है. सो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन डिक्रीज होगा, ह्यूमिडिटी डिक्रीज होगी तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इंक्रीज करेगा. सो इनवर्स रिलेशनशिप. सो इंक्रीज इन ह्यूमिड एयर डिक्रीजेस the rate of transpiration and how? वो किस तरह से? Because it lowers the diffusion of water
from mesophyll cells and air spaces and through stomata. तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर है उसको ये कम कर देगी, इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, सो लोअरिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और इसके बरअक्स जो ड्राई एयर होती है, ड्राई, ठीक है, ये तो ह्यूमिड एयर की बात हुई। दूसरा ड्राई एयर, इन ड्राई एयर उसको कहते हैं जिसमें ह्यूमिडिटी कम होती है, ह्यूमिडिटी इज लो, क्लियर। The rate of transpiration increases because it increases the rate of diffusion of water. Clear? So this is how the humidity and vapor pressure affects the rate of transpiration. Clear? Now, the fifth factor that also acts just like the humidity, so that is wind. Number 5 is wind. So dear students, wind किसको कहते हैं? What is wind? The moving air is called wind. जब हवा चलती है तो उसको हम कहते हैं wind, यानी तेज हवा को, ठीक है। The moving air, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, define wind. So the moving air is called wind. तो जब एयर मूव करेगी it will increase the diffusion of water from mesophyll cells to air spaces and to stomata, thereby increasing rate of transpiration. And on the other hand, the still air, हवा बिल्कुल एक जगह पर है, हम कहते हैं ना हवा नहीं चल रही, हवस हो रही है, ठीक है, सफोकेशन हो रही है, सो उसको कहते हैं बेसिकली स्टिल एयर। तो मूविंग एयर तो विंड कहलाती है। सो दिस इज द अदर साइड ऑफ द एयर दैट इज कॉल्ड स्टिल एयर. It decreases the rate of diffusion of water so decreasing the rate of transpiration as well. So this is how wind affects the rate of transpiration. And the last factor is availability of soil water.
तो ट्रांसपायरेशन किसके जरिए हो किससे रही है, यानी पानी मूव कर रहा है, लॉस ऑफ वाटर हो रहा है। तो जब अवेलेबिलिटी ही नहीं है तो ट्रांसपायरेशन कम हो जाएगी, ठीक है। तो बहुत सादा सी बात है, अगर सॉइल के अंदर मौजूद वाटर जो है, क्योंकि वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब होता है, फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, हमने डिटेल से पढ़ा इस चैप्टर में। और जब वाटर की अवेलेबिलिटी ही कम है, सो द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इज स्लो डाउन। Reduced availability of water decreases the rate of transpiration and excessive availability of water increases the rate of transpiration. क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, इन 6 के 6 फैक्टर्स को हम आसानी के साथ एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। वो एग्जाम्पल मेरे माइंड में है, सो ये समझाने के बाद मैं आमतौर पर उसको कोट किया करता हूँ स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, ताकि वो आसानी से इसको मेमोराइज कर सकें, याद रख सकते हैं। तो इसकी मैं जो कंपैरिजन के तौर पर जो एग्जाम्पल लेता हूँ वो है कपड़े सुखाने की, ठीक है, कपड़े सुखाने की। तो कपड़े सुखाने का जो मैकेनिज्म है और ट्रांसपायरेशन का मैकेनिज्म तकरीबन एक ही पैटर्न को फॉलो करते हैं, जस्ट लाइक दिस। लाइट, तो जब दिन के वक्त लाइट चूंकि ज़्यादा होती है, सुबह के वक्त कम लाइट होती है, जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तब भी लाइट कम होती है, सो इन बिटवीन लाइट ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग लाइट। तो स्ट्रॉन्ग लाइट में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग लाइट में रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी बढ़ेगा। अगर बादल हो और या धुंध हो तो उसमें ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाती है, और इसी तरह से लाइट की इंटेंसिटी कम होने से कपड़े भी देर से सूखते हैं। दूसरा, टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में, जैसे गर्मियों में टेम्परेचर हाई होता है, सर्दियों में टेम्परेचर आमतौर पर कम होता है। तो टेम्परेचर, जब गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, एवेपोरेशन बढ़ जाता है। सर्दियों में कपड़े कम वह जल्दी सूखते हैं, मतलब टाइम लेते हैं। उसकी रीज़न कि टेम्परेचर कम होने की वजह से रेट ऑफ एवेपोरेशन, पानी, कपड़ों में से पानी जो एवेपोरेट हो रहा होता है वो कम होता है, इसी तरह से रेट ऑफ ट्रांसपरेशन भी कम होगा। तीसरी चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर एनवायरनमेंट में ज़्यादा होगी तो वो लाइट को ज़्यादा ट्रैप करेगी, तो ज़्यादा ट्रैप करेगी तो हीट ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, हीट ज़्यादा होने से कपड़े जल्दी सूखेंगे। लेकिन यहाँ पर हम इसको उस तरह से कोरिलेट नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम इस फैक्टर को एक्सक्लूड करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ह्यूमिडिटी और वेपर प्रेशर की तरफ। तो हवा में अगर नमी ज़्यादा हो, जैसे आमतौर पर बारिश के बाद होती है, या रात के वक्त ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो रात के वक्त और बारिश के बाद, या क्लाउडी वेदर हो तो उस दौरान भी ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। इसी तरह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी कम होगा। ह्यूमिडिटी कम होगी हवा के अंदर, यानी कि ड्राई एयर ज़्यादा होगी, तो कपड़े भी जल्दी सूखेंगे और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी इंक्रीज करेगा। इसी तरह से विंड, अगर आप कमरे में सिर्फ बाहर धूप ना भी हो, लाइट ना भी हो, कपड़े में सिर्फ पंखा चला के और कपड़े रख दें तो वो सूख जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से विंड किसे कहते हैं, मूविंग एयर को। तो पंखा क्या करता है, एयर को सर्कुलेट करता है, मूव करवाता है। तो या फिर आप बाहर जब हवा चल रही हो तो उसमें कपड़े रखें तो जल्दी सूख जाते हैं। इसी तरह से रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन विंड में इंक्रीज करेगा और स्टिल एयर में डिक्रीज करेगा। इसी तरह से जब हवस का मौसम आता है, या जून जुलाई का मौसम आता है, या अगस्त के अंदर, ये आमतौर पर जून जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है और स्टिल एयर भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ह्यूमिड एयर और स्टिल एयर, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उसमें कपड़े इतनी आसानी से नहीं सूखते और रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन भी
कम रहता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन भी क्या है, इवेपोरेशन है, और जहाँ पर कपड़े के सूखने का अमल भी इवेपोरेशन के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरह से अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर, तो पानी होगा तो ट्रांसपायरेशन होगी, पानी नहीं है तो ट्रांसपायरेशन भी कम हो जाएगी। क्लियर? इसी तरह से कपड़ों में अगर पानी ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन ज़्यादा नहीं होता, ठीक है, वो आसानी से वो नहीं सूखते। जब कपड़ों के अंदर पानी आप अच्छी तरह से उसको निचोड़ के रखेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, मतलब कि इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। सो दिस इज़ हाउ इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए आप इसको कोरिलेट करके याद रखने की हद तक ये मैं कह रहा हूँ, ताकि इनका रिलेशन डायरेक्टली उसी के इवेपोरेशन के साथ है, तो याद रख सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आमतौर पर एक छोटा सा टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर कभी कभार पूछा जाता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। दैट इज ट्रांसपायरेशन, वो इसी से रिलेटेड है, तो इसीलिए इसको मैं इसी लेक्चर में डिस्कस करूंगा। ट्रांसपायरेशन नेसेसरी इवल। देखने में आम सा क्वेश्चन है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन तो अब तक तो सबको क्लियर ही होगी, ठीक है। ट्रांसपायरेशन होती क्या है, किस तरह से होती है, कितनी टाइप्स की होती है, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एज ए नेसेसरी इवल। इवल किसे कहते हैं? किसी बैड, यानी कि किसी बुरे अमल को। और नेसेसरी का मतलब लाजमी। तो ट्रांसपायरेशन लाजमी होती है, मैंने आपसे इससे पहले भी जिक्र किया था कि ट्रांसपायरेशन हर टेम्परेचर पे होती है, हर टेम्परेचर पे, चाहे 1 डिग्री सेल्सियस है, चाहे 2 डिग्री है, चाहे 50 डिग्री है, चाहे 100 डिग्री है, तो ट्रांसपायरेशन नहीं रुकती, हर टेम्परेचर पे ट्रांसपायरेशन होती है। अलबत्ता हाँ, लो टेम्परेचर पे कम होती है, हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा होती है, ये ज़रूर फ़र्क होता है, लेकिन होती है। तो ट्रांसपायरेशन ना रुकने वाला अमल है, इसके लिए हमारी बुक में वर्ड इस्तेमाल हुआ है, ट्रांसपायरेशन is inevitable process, inevitable which can't be stopped, इसको रोका नहीं जा सकता, ठीक है। इट इज इनएविटेबल प्रोसेस। तो बाज़ औक़ात इसको इवल हम क्यों कह रहे हैं, बैड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ट्रांसपायरेशन रुकती नहीं है, किसी भी टेम्परेचर पे रुकती नहीं है, इनएविटेबल प्रोसेस है, इट अकर्स at all temperatures, तो इसकी वजह से बैड इफेक्ट्स क्या होंगे, प्लांट के लिए बैड इफेक्ट्स क्या होंगे? which may lead to wilting, wilt का मतलब होता है मुरझा जाना। तो जब ट्रांसपायरेशन हो जा रही है तो क्या होगा, जो वाटर पोटेंशियल है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर पोटेंशियल कम होगा तो जो प्लांट के जो सेल्स हैं वो फ्लैसिड होना शुरू हो जाएंगे, जिससे प्लांट क्या होता है, मुरझा जाता है, पत्ते मुरझा जाते हैं। पत्ते मुरझा जाएंगे, प्लांट मुरझा जाएगा, तो मतलब कि उसमें फोटोसिंथेसिस का अमल कम हो जाएगा। सो ये खतरनाक हो सकता है और प्लांट की डेथ भी हो सकती है इससे। सो इट लीड्स टू विल्टिंग एंड डेजिकेशन। डेजिकेशन कहते हैं एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर को, अंदर खुश्क हो जाना, प्लांट खुश्क हो जाता है, ठीक है। तो खुश्क हो सकते हैं, बाज़ औक़ात जहाँ पर ज़्यादा ट्रांसपायरेशन हो रही है सिर्फ वही हिस्सा खुश्क हो जाता है और वो खुश्क होकर टूट जाता है, गिर जाता है प्लांट का वो हिस्सा, ठीक है। सो अगर ओवरऑल प्लांट के ऊपर इफेक्ट पड़ा डेजिकेशन का तो उससे प्लांट की डेथ हो जाएगी। सो ट्रांसपायरेशन इज इनएविटेबल प्रोसेस, इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर्स which may lead to wilting, desiccation, and it also affects the stomatal opening and closing। वो किस तरह से कि अगर वाटर ही कम अवेलेबल है तो गार्ड सेल्स सही तरह से इन्फ्लेट नहीं होंगे, दे विल रिमेन क्लोज्ड, और क्लोज्ड रहने की वजह से जो अपस्ट्रीम है वाटर की वो इफेक्ट होगी, यानी ट्रांसपायरेशनल पुल इफेक्ट होगी। ट्रांसपायरेशनल पुल इफेक्ट होगी क्योंकि वाटर जो है दैट इज़ द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो सही तरह से उस परसेंटेज पे अवेलेबल नहीं होगा, सो इट विल इफेक्ट द ग्रोथ। तो इसी तरह से हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट विच मे लीड टू विल्टिंग, डेजिकेशन एंड ग्रोथ।
of the plant. तो माइल्ड स्ट्रेस, ये बहुत अच्छी एग्जांपल्स मौजूद हैं इन दिस फील्ड इन द बॉटनी कि अगर प्लांट को माइल्ड वाटर स्ट्रेस भी होगा, थोड़ा सा भी वाटर की कमी या इसमें सामना करना पड़ेगा, जैसे कि ड्रॉट के सीजन में, सो इट इफेक्ट्स द ग्रोथ ऑफ द प्लांट ओवरऑल. ठीक है, एंड it may lead to the death of plant. Clear? So ये इस तरह से ट्रांसपायरेशन नेसेसरी इवल है, लेकिन इसके बावजूद इसके कुछ फ़ायदे भी हैं. ठीक है, इसके बेनिफिट्स भी हैं. सो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट हेयर वी आर गोइंग टू एनलिस्ट कि ट्रांसपायरेशन के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं. तो ये आपने उसमें, ये अगर क्वेश्चन आता है तो ये सारी बातें उसमें मेंशन करनी है आपने कि किस तरह से ये नुकसानदेह है. हाउ इट इज़ प्रूव्ड इवल, नेसेसरी है और इवल भी है, नहीं रुक सकता और ये इस तरह से प्लांट को नुकसान पहुंचा सकता है. लेकिन यहां पर हम उसके मेंशन करने लग रहे हैं सिग्निफिकेंसेस. तो सिग्निफिकेंस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सो नंबर 1, द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. ठीक है, सबसे पहला फायदा ट्रांसपायरेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम. और जो ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम होती है, इट कैरीज salts and minerals to all parts of plant. तो सबसे पहला हिस्सा, क्योंकि हर प्लांट को सॉल्यूट्स चाहिए, हर प्लांट को मिनरल्स चाहिए. मिनरल्स इनकी ग्रोथ के अंदर इफेक्टिव हैं, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ है कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लोरोसिस हो जाता है, लीव्स दे बिकम येलो. पोटेशियम की हो जाए तो रूट स्टंटेड ग्रोथ वगैरह. तो वहाँ पर मिनरल्स पहुँचना ज़रूरी है, जो किसके ज़रिए पहुँचते हैं, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के ज़रिए, इन बल्क और इन मैस फ्लो. और बल्क और मैस फ्लो का मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि बल्क और मैस फ्लो जो होता है, ये बेसिकली जब भी कोई चीज़ वाटर के अंदर डिसॉल्व होकर मूव करेगी तो उसे मैस फ्लो या बल्क फ्लो कहेंगे. ठीक है, सो ये बल्क फ्लो में ये सारी चीज़ें जा रही होती हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर. Transport of water by transpirational pull. कोहेजन टेंशन थ्योरी में डिटेल से डिस्कस किया, तो ये उसके जरिए होती है. क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बाय ट्रांसपायरेशनल पुल, तो वाटर होगा तो फोटोसिंथेसिस होगी, नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, मतलब कि इट लीड्स टू डायरेक्टली टू द डेथ ऑफ द प्लांट. क्लियर? तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. तीसरा सिग्निफिकेंस, that is, it provides the cooling effect. It provides, transpiration क्या करता है, cooling effect during hot and dry weather. Clear? तो जब भी मौसम गर्म हो, खुश्क हो, तो उसमें प्लांट्स जब वो हीटअप हो जाती है बॉडी, तो ट्रांसपायरेशन ही वो ऐसा अमल है जिसके ज़रिए द बॉडी इज कूल्ड डाउन. क्लियर? सो दीज आर द मेजर सिग्निफिकेंसेस एंड दिस इज वाई द ट्रांसपायरेशन इज कॉल्ड एज अ नेसेसरी इवल. ठीक है, सो बिसाइड्स दिस नेसेसरी इवल वर्क्स और प्रोसेसेस, the significances are also contributable to these processes of the transpiration. So that's all for this lecture. So dear students, hopefully आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.